Yes, good morning, everyone. Good morning, sir. Yes, everyone is requested to keep the camera in the active state. Yes, Ajay Pratap, how are you? बढ़िया सर, तुम दसो। और इस बार केमिस्ट्री के ऊपर तो नहीं ज्यादा फोकस कर रहे? नहीं सर, इस बार तीनों सब्जेक्ट में कर रहा हूँ। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। कीप ए प्रायोरिटी ना, जिसमें आपको लगता है दैट इज यू कीप ए प्रायोरिटी, आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट में मेरे को ज्यादा टफ लगता है, यू कैन गिव मोर टाइम टू दैट। देयर इज इसमें कोई हार्म नहीं है दैट इफ यू से दैट you give more time to chemistry, there is nothing to worry for that. So we will just wait for a couple of minutes now. Only few students have joined in. कल तो हुई नहीं हमारी क्लास ना? यस सर, कल वो फिजिक्स की लग गई। हाँ, मैराथन। So what is the difference between a normal class and a marathon class? Yes, Jasleen बताएगी. Jasleen will tell about this. Marathon, we study one subject for a long time, but in simple lessons, we just manage to 50 minutes or something like that. Yes. One lesson of 50 minutes. I have just a query on that side that is the what is the effective of a marathon class and a normal class? Which class you like the more? Well, normal is okay, No. but marathon is also important. But we get tired, no? Marathon becomes important now when you have a sort of a target for you, na? When you are looking at the exam and you see that the exams are in front of you, and I am weak on the physics side, so I need to attend the marathon class. But in normal, when the session starts, na, so I mean, still the basically player is not ready to run the marathon. Na? First, we will need to work on the stamina, and then the player will run the marathon race. So for marathon, we require a lot of stamina, and build up is required, and then we can run the marathon. So let's allow a few more. Mr. Saksham is joining in. So yesterday we have focused on the very important topic that is the looping. Clear? Plus 2 में as such directly there is not a major requirement of looping. But what happens when you come to a project? When we develop it, you know that in plus 2 we have a 10 marks reserved for your project work. Clear? So in that project work now we cannot confine that this particular knowledge is required. Sometimes some people are developing this project where we need to go beyond the syllabus also sometimes. Clear? So that's why we are basically covering the basics parts so that you remain comfortable during your project also. So never attend a class like sir looping का तो इस साल syllabus में कुछ नहीं है, so why we are focusing too much? Because the basics are important ना. If you know the basics, the advanced topics you can do so many things you can do on your own. But if you lack on the basic side, and then you will be facing troubles when you are developing the project. Otherwise looping का कोई बहुत ज़्यादा major काम नहीं है, but looping control statements, these are the basics. ठीक है? जैसे let's say most of you study the mathematics. ठीक है? तो जो mathematics का basics है, चाहे आप integration में चले जाओ, differentiation में चले जाओ, कोई advanced topic पढ़ रहे हो, so you are applying the basic of mathematics over there ना. जो calculations and those things, they are now they become the elementary part or basic part of mathematics. Clear? So similarly we are focusing on that side. So yesterday we have focused on you see this is the few programs we have developed yesterday. तो एक तो इसमें हमने पैटर्न के ऊपर फोकस किया था, and this is the first pattern that we have developed.
यस अजय प्रताप, आप बता सकते हो अगर मैंने इसको मैथमेटिकली किसी फिगर के साथ कंपेयर करना हो तो ये कौन सी फिगर बन रही है? Sir, right angle triangle. Right angle triangle, very good, clear. So basically we have made a right angle triangle. So this is basically where the looping concept comes in, and here basically we have two loops. One is called the outer loop and the second is called the inner loop, clear. तो इसमें सबसे पहले क्या है, that is the very first point is कि how many rows are required to us. कि we have made a dynamic basically the pattern. It may contain 4 rows, it may contain 5 rows, it may contain any number of rows. Like let's say I run this program and I enter here value 10, clear. So you see here the pattern is made up of 10 rows now, clear. So this sort of program is called a dynamic one. Dynamic one, why? Because if you enter here just 4, so it will make a right angle triangle of 4 stars, clear, with 4 rows, clear. So first step is clear. First step is basically that we want to input how many rows are required. This n keep tracks of the thing that how many rows are required in the program, in your output, ठीक है. Then we have basically 2 rows. ये जो रो है हमारे पास, ये first row जो है, sorry first loop है, that is called the outer loop. This will keep track of number of rows, कि हमें कितनी rows चाहिए. So this loop will run from 0 to n. जसलीन, ये 0 to n का क्या मीनिंग होता है? 0 to n We have, this is start and end point of the range. वेरी गुड, वेरी गुड. मेरे को ये बताओ कि ये लूप कितनी बार चलेगी? 0 to n means how many times this loop will run? Sir, the number which is input by the user. Let's say मैंने 7 इनपुट कर दिया, ये लूप कितनी बार रन करेगी? 6 times. 6 times. थोड़ा और सोच के बताओ. आई विल से, मैं अभी इसको रन करता हूँ. यू सी हियर, अभी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं. मैंने यहाँ पे 7 इनपुट किया, एंटर किया. देखो इसके अंदर कितनी रोज है? 1 2 3 4 5 6 and 7. तो अब मेरे को बताओ कि ये लूप 7 बार क्यों चल रही है? Why this loop is running for 7 times? As per the input of the user. नहीं, मेरे को यहाँ से ये जो रेंज 0 to n दिया हुआ है, यहाँ से एक्सप्लेन करके बताओ कि why this is not running 6 times, why this is running 7 times और 8 टाइम भी नहीं रन कर रही. No, sir. ठीक है. Sir, maybe before. कोई बात नहीं. It is. We will take the other help. Yes, Mr. Saksham. Yes, अजय प्रताप. सर क्वेश्चन रिपीट करना. ओ बेटा, क्वेश्चन सुनते रहा करो. माय क्वेश्चन इज, सर वो इंटरनेट मैंने जसलीन से पूछा कि ये इसमें मैंने n7 इनपुट कर दिया. नाउ ये लूप 7 बार चल रही है. माय क्वेश्चन इज व्हाई दिस लूप इज रनिंग 7 टाइम्स. एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है कैसे ये 7 बार चल रही है. So maybe the signal trouble is there. सिंपल सी बात है. जसलीन, जैसे ये देखो कि ये 0 to n है, and we have discussed number of times कि रेंज फंक्शन के अंदर ये जो सेकंड वैल्यू होती है, एंड वैल्यू, दैट इज एक्सक्लूडेड, दैट इज नॉट इंक्लूडेड. तो ये लूप चलेगी 0 to 7, बट 7 इज नॉट इंक्लूडेड. तो ये चलेगी 0 to 6, because 0 is included. That's why this loop will run 7 times. 1 से 6 नहीं चल रही है, 0 to 6 चल रही है. So 0 to 6 चल रही है, that's why this loop will run 7 times. ठीक है. और फिर ये जो हमारे पास इनर लूप है, this inner loop is keeping track of कि हर रो के अंदर, in each row how many stars are to be printed. Let's say in first row we need only 1 star, so this will run from 0 to
I plus 1, I की वैल्यू इनिशियली कितनी है 0, 0 to 1. It means this will run only one time. Next time when the I will be in the next loop, when I will be 2, this will run from 0 to 2, means it will run 2 times. So whatever the number of row is for that row, it will run as many number of times as the row number is. Clear? So the role of each and every loop should be clear. This loop is for number of rows, and this loop is for in each row how many stars are to be printed. Clear? So you can think that अगर इसको हमने simple words में पढ़ना है तो ये जो रो है ये काम कर रही है रो के लिए, और ये काम कर रहा है each रो के अंदर कितने कॉलम होंगे हमारे पास. कैसे भी आप इसको याद रखना चाहते हो, that's up to you how you want to remember this thing. Clear? So this is how this is working. और अगर मैं इसको अगर मैं if I will remove it with, let's say मैंने इसको I plus 1 कर दिया, तो कोई इसकी आउटपुट बता सकता है मेरे को? What will be the output of this now, this loop? अब इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी? Yes, Jasleen, कोई hit and trial? Maybe think of any guess. May not be the exact answer. अब इसमें देखो, इसमें स्टार प्रिंट नहीं होगा, इसमें स्टार प्रिंट नहीं होगा, इसमें आई की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगी हमारे पास. कोई गैस? वट एवर द गैस यू वांट टू मेक. So let's say I will run this program and you can see the output. Let's say I enter the number of rows are 5. So you can see here the output is 1, then 2, 2, then 3, 3, 4, 4, and 5, 5. Clear? Means by making little bit changes. अब क्या है इसमें? In place of star, I have made here I. So initially the value of I is 0, and I have made it 0 plus 1. So 1 will get printed. Next time when the control goes to the next loop, clear? And this I will become now 1. 1 plus 1, it will print 2. Clear? Then 3, then 4, then 5, and then 6, like this. Clear? So best you will learn these things when you will practice. आप एक आधी बार इसको रन करोगे अपने सिस्टम पे, and then you will be much more comfortable in doing these questions. और ये जो लास्ट पे ये प्रिंट लिखा हुआ है, ये किस लिए, कुछ बता सकते हो इसके बारे में? This print is printing the output. no, this is blank ना, इसमें कुछ भी आउटपुट के आउटपुट तो इससे प्रिंट हो रही है. आउटपुट इज विद दिस वन. इस प्रिंट से क्या हो रहा है? देखो, maybe adding the comment. no, print is not for, इसमें कुछ लिखा तो है नहीं हमने. How you will get some a message over here ना? You will not get any comment here because I have not written anything inside. If I write something inside this na, so then you will get the message, but I have not written anything here. Yes, Saksham? और बाकी क्लास कहाँ चलेगी आपकी? तो काफी बड़ी क्लास है, मेरे को लगता है आपकी क्लास में तो आईपी के काफी स्टूडेंट्स हैं. सर पी इस आधे पी वाले हैं ना, अच्छा, फिजिक्स की क्लास. ठीक है. हाँ जी सक्षम. सर हर बार वहां चले जाते हैं, कुछ इधर नहीं मेरा इसमें ये है कि हम कोई भी वैल्यूज डाले तो प्रिंट कुछ नहीं आएगा सर, ब्लैंक 0 नल आएगा सर उधर. इस प्रिंट का क्या काम है? ये पक्का नहीं पता है, एक आइडिया से बोल रहा हूँ.
ठीक है। नाउ लिसन माय आंसर इज कि इस प्रिंट से, ये जो प्रिंट है इससे तो रो वाइज आउटपुट आ रही है, मींस 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है. So what this print is basically doing, when the control comes out of this inner loop, this is the inner loop. When the control comes out of this inner loop, the control goes to this print statement. So what this print statement does, it transfers the control to the new line. It transfers, you can note down what it does. It transfers the control to the new line. Simple. Only one task this print is doing, that is, it is just transferring the control to the new line. Okay, so let us move to a bit more difficult program. ठीक है, इस तरह का पैटर्न है अब हमारे पास. इस तरह का पैटर्न किया है हमने लास्ट ईयर. वी हैव डन दिस सॉर्ट ऑफ पैटर्न और नॉट? यस जसलीन. एक मिनट, आप यू लुक एट दिस पैटर्न. इस तरह का पैटर्न किया हमने लास्ट ईयर. यस, और किया है यस या नो, कुछ तो बता दो. So this is one more example of the same sort of pattern we have. Yes, जसलीन आप बताओ इस पैटर्न और प्रीवियस पैटर्न में क्या डिफरेंस है? क्या क्या डिफिकल्टी आएगी? What additional things you have to do in this program as compared to the previous one? The last one was the right angle triangle, and this is an simple triangle. So we have to change something, right? My only question is there, very simple question is there. Listen carefully. My question is that, like in the last program, you know how we have made a pattern using two loops. One is the outer loop, second is the inner loop. So looking at the output, what thing you see that something additional we need to do in this particular program, looking at the output only? Sir, indentation देनी पड़ेगी. Yes, that वो इंडेंटेशन वर्ड ना हम पाइथन में यूज करते हैं. नॉर्मली हम इंडेंटेशन वर्ड नहीं यूज करते. दिस इज बेसिकली अ रॉन्ग वर्ड फॉर आउटपुट पर्पस. ये है, आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है कि ये जो स्पेस है ये हमें देखनी पड़ेगी, ये स्पेस कैसे बनानी. ठीक है, रेस्ट थिंग वी हैव ऑलरेडी डन. तो इसको हम इंडेंटेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम स्पेस बोलेंगे. इंडेंटेशन का वर्ड जो है, you have basically raised a very vital point. इंडेंटेशन का वर्ड सिर्फ पाइथन के प्रोग्राम के लिए यूज होता है. When we think of the output, तो हम इसको इंडेंटेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम स्पेस बोलेंगे. This is just a space. Clear? So good that we are discussing the vital points here. अब इस प्रोग्राम में कुछ भी नया नहीं है, बस ये जो 2 लाइन का कोड है ना, ये 2 लाइन का कोड, ये एडिशनल है. दिस कोड, this code is the additional code. ये जो k लाइन वाला लिखा हुआ ना, k is equal to k in range 0 to n minus I, and then this print these spaces. ठीक है, तो ये किस लिए है? ये हर एक रो में
इन ईच रो, ये जो हमें स्पेसिस रिक्वायर्ड है उसके लिए है ये। And you look at the output also, you can see in the output हर एक रो में क्या हो रहा है, हर एक रो में स्पेस कम होती जा रही है, स्पेस इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, इसके लिए हमने ये जो लूप है, वी हैव मेड दिस k in range 0 to n minus i, n minus i, why n minus i, because in each row the value of I will get incremented by 1 and number of spaces will get reduced by 1. Clear? So that's why we have kept it as n minus I. Clear? So each and every point should be clear. These are very, very simple points, but no, if you are basically able to answer each and every question, then you are able to make the program. Clear? और इस प्रोग्राम में ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, why we have made this written it like this, print then this double quotes, then end is equal to and we have made kept a space here. इसका मीनिंग कोई बता सकता है मेरे को? क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, हमारे पास एक प्रिंट स्टेटमेंट, ये देखो एक बॉटम पे प्रिंट स्टेटमेंट है, दिस इज दी प्रिंट स्टेटमेंट एट द बॉटम, और एक प्रिंट स्टेटमेंट ये है हमारे पास। तो इन दोनों में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन दीज टू प्रिंट स्टेटमेंट्स? दिस प्रिंट स्टेटमेंट जस्ट transfers the control to the new line, and this print statement just add a space only, single space. It will print a single space. Clear? It will not transfer the control to the next line. Clear? So that is the difference between this print statement and this print statement. Yes, Romika is there. Romika बेटा करो इसको, कैमरा को ऑन करो बेटा। Yes, any question from your side? कोई क्वेश्चन है आपका? Sir, can you explain this again? मैंने पूछा था कि ये तो मैंने आपको बोला कैमरा ऑन करो, तब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो। इफ आई हैव नॉट सेट दी ऑन योर कैमरा, तो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछना ही नहीं था। आप बताओ, बट बेसिकली नो, आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट स्टेप द डिफरेंस बिटवीन दिस प्रिंट स्टेटमेंट एंड दिस प्रिंट स्टेटमेंट। क्लियर? you let's say we write a separate program like this. जैसे ये वाला ये कोड लिखा हुआ है आपके सामने, जैसे इस कोड में क्या है, फॉर i in range 5 to 0 मींस स्टार्टिंग वैल्यू बड़ी है, एंडिंग वैल्यू कम है, और हमने उसमें एक की डिक्रीमेंट कर दी है, तो इस तरह की आउटपुट आ रही है। ठीक है रोमिका? अब मेरा टारगेट है कि मेरे को आउटपुट कॉलम वाइज नहीं चाहिए, ऐसे अलग अलग नहीं चाहिए, मेरे को एक ही रो में सारी, एक ही रो के अंदर ऐसे आउटपुट चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए मेरे को, वर्टिकल आउटपुट नहीं चाहिए। So what I will do, end is equal to space। तो अब क्या करेंगे, 5 के बाद एक स्पेस, 4 के बाद एक स्पेस, 3 के बाद एक स्पेस, 2 के बाद एक स्पेस, 1। So the output will be like this। ठीक है? अब मेरी आउटपुट हॉरिजॉन्टल हो गई। तो इसका मीनिंग क्या है कि अब मैंने ये जो एंड है, मींस प्रिंट एंड कैसे हो रहा है, एंड बाय डिफॉल्ट एंड की वैल्यू होती है न्यू लाइन, मैंने इसको चेंज करके क्या कर दिया, स्पेस कर दिया। आप इसके अंदर स्पेस बढ़ाओगे, आपकी आउटपुट में भी स्पेस बढ़ जाएगी। यू सी, आपकी आउटपुट में भी स्पेस बढ़ गई। आप इसको और बढ़ा दो, आपकी आउटपुट में वैसे स्पेस बढ़ती जाएगी। हाँ जी, मार्क कर, मार्क करो, एक मिनट।
ठीक है, सो दी पॉइंट इज क्लियर हियर और नॉट? एक और है जो हमारे पास वाइटल पॉइंट है इन दी टुडेज लेक्चर। That is the basically the else statement. So else statement in the for statement. First we will look at the PPT and then I will move to the example. Clear? तो ये क्या है हमारे पास? दिस इज दी फॉर लूप, और इस फॉर लूप में क्या है हमारे पास? ये एक एल्स स्टेटमेंट भी है। क्लियर? सो आई विल जस्ट कॉपी द कोड फ्रॉम हियर। दिस इज वेरी सिंपल कोड। दिस इज सो रोमिका बताओ क्या 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 प्रॉब्लम है इस प्रोग्राम में? एरर कौन सा है? सर एल्स यूज किया गया है इसमें। नहीं, मेरे को एरर बताओ, एरर। देखो आउटपुट आपके सामने है, इसमें तो वो बता भी रहा है कौन सा, कहां एरर कहां पे है। लाइन नंबर 2 में एरर है। देयर इज एरर इन दी लाइन नंबर 2। एल्स में तो एरर है ही नहीं। जब भी हम किसी चीज को कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो एज इट इज नहीं चल जाता, तो थोड़ा हमें एफर्ट भी करना पड़ता है इफ यू डू कॉपी पेस्ट ऑपरेशन। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ कॉपी पेस्ट। यस जसलीन। जसलीन, आपने एक बड़ा प्रीवियस आंसर के अंदर एक आपने बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया था जिसको मैंने रोका था कि ये नहीं है। स्पेस। स्पेस, वेरी गुड। दिस इज यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे इंडेंटेशन है। यू सी, ये देखो ऑलरेडी आप इसी आउटपुट को देखते क्यों नहीं? व्हाई यू डोंट लुक एट द आउटपुट? इसमें लिखा है इंडेंटेशन एरर। हर कुछ तो हमारे सामने लिखा हुआ है, हमने कोई गैस तो करना ही नहीं है किसी चीज का। ये देखो एरर में लिखा हुआ है इंडेंटेशन एरर, तो जस्ट फॉर के बाद हमें क्या करना था? यहाँ पे स्पेस देनी है। तो ये जो स्पेस है यहाँ पे इस प्रोग्राम में, वो इंडेंटेशन है। यू आर गेटिंग और नॉट? आउटपुट में इंडेंटेशन नहीं है, आउटपुट में वो स्पेस थी, इस प्रोग्राम में वो इंडेंटेशन है। व्हाई दिस इज अ इंडेंटेशन? बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ पाइथन इज बेस्ड ऑन इंडेंटेशन। इसको रन करते हैं फिर से, ठीक है? तो अब रोमिका बताएगी। रोमिका, व्हाट इज द एरर नाउ? अब कौन सा एरर आ रहा है? सर मेरे को ना वो पहली वाली जो आपने स्लाइड्स वाली स्क्रीन दिखाई थी ना, अभी तक वही दिख रही है, तो ये मेरे को समझ नहीं आ रहा था अब क्या पूछ रहे हो। ओके, सॉरी। हमें भी सर यही दिख रही है। सॉरी। हमें भी ये अब दिख रही है? यस सर। सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली क्या है, मैं स्क्रीन स्वैप कर देता हूं, मेरे को दिखाई दे रही होती है लेकिन वो आप लोगों को दिखाई नहीं देती समटाइम्स। चलो ठीक है, अब बताओ। सर इंडेंटेशन एरर। यस, इंडेंटेशन एरर। ठीक है, व्हेन यू रन दिस वन, तो आप इस आउटपुट को एक्सप्लेन कर दो। रोमिका, एक्सप्लेन दिस आउटपुट। ये जो आउटपुट आ रही है हमारे पास, सर पहले हमने बताया कि रेंज है 1 से 4 तक, स्टार्ट 1 से 4 तक है, तो वो सिर्फ 3 तक चलेगी क्योंकि आउटपुट जो 4 है वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। सो 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। और फिर तो एल्स वाला मेरे को नहीं आ रहा अभी। सिंपल सी बात है कि when this loop is exhausted na, this loop is now finally over, तो control automatically will go to the else part.
There is nothing any difficult part here na. When this loop is exhausted, the control will be automatically transferred to the else part. So in the else part we have written here no break. So no break will be printed here, whatever the message you type inside the print one. So now let's say I convert this code into ठीक है। इस केस में बताओ क्या आउटपुट आएगी। यस जसलीन, फर्स्ट वी गिव द चांस टू जसलीन। So in this, first of all, it will run till 3. As the starting point is 1 and the ending is 4, and it will check that when I is equals to 3, the loop will end. यस यस, तो ये नो ब्रेक आउटपुट में आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर, आएगा। एल्स अगर लगा है तो आएगा। नहीं एक्चुअली पता क्या है, यू सी हियर व्हेन वी राइट लाइक दिस ना, दिस बिकम्स ए होल, दिस फॉर स्टेटमेंट बिकम्स ए सिंगल ब्लॉक, and whenever the break statement is executed, it transfers the control from the whole block. Clear? We will just run this one. Clear? So you will find only 1 and 2 get printed. When this break statement is encountered, this complete is a total, this is combined together forms a single block. ये for statement अब single block है, including the else part. Else part is now part of for statement. It is not, ये different नहीं है, ये for का आप क्या बन गया, part बन गया है। तो ये first part है उसका, ये उसका second part है। And whenever this break statement is executed, it transfers the control to the from the current block of statements. तो पूरे के पूरे block से control को बाहर निकाल देगा। And you can see, अगर हम इसके अंदर यहाँ पे एक और statement लगा दे print, so you can see this statement will get executed. Clear? The control will directly come to this statement. Clear? So these are the very small points. Clear? So keeping these points clear is very vital. So because in programming programming is just equivalent to mathematics. If you will falter at one step, you will not get the required output. Like you don't get the right answer if we do some calculation or any mistake at let's say step number 1, step number 2, we will not get the answer in mathematics. So the same way, if we do some mistakes inside, we will not get the required output here. Clear? So that's why we are putting a lot of efforts on the, now whatever the topics we have covered, you have a lot of time. I just want to say you that you take your time. Clear? And at least आप एक दो प्रोग्राम को डेली बेसिस पे करो। क्लियर? चाहे आप कॉपी पेस्ट करके ही करो। आई एम नॉट सेइंग कि कोई नए प्रोग्राम बना के दिखाओ, जो प्रोग्राम हम डिस्कस करते हैं एटलीस्ट उतनी क्लैरिटी आपको मिनिमम जो है वो होनी चाहिए। रेस्ट दैट ऑल अप टू अस, दैट यू वांट टू एक्सप्लोर मोर, सो नो वन इज स्टॉपिंग यू, यू कैन एक्सप्लोर मोर थिंग्स आल्सो, बिकॉज द थिंग्स बिकम्स इंटरेस्टिंग इफ यू एक्सप्लोर। सो इफ यू आर जस्ट सिटिंग एंड if you're just attending the classes, so you will gain like that only. Clear? So only thing is there कि अगर आप इसमें interest लोगे, so then this is very simple also and interesting also. Clear? So I think that's the concept that we have covered earlier, that I think you actually yesterday आपकी वो थी physics वाली class थी। Clear? So let's say we have one more question is the example of this nested one. ठीक है, तो रोमिका से पूछते हैं इसकी आउटपुट ना क्या आएगी इसकी आउटपुट।
Yes. So when you run this one, so you get the output like this. Yes, Romika, इसको explain कर दो output को. Just explain this output. समझ लो, आप पढ़ लो, आप you can take your time also. If you want just 1 minute for understanding the output, you can take your time also. सर इसमें 1 से लेके 3 तक रेंज है, तो सिर्फ 1 और 2 का टेबल प्रिंट होगा, क्योंकि जे को हमने 1 से 11 किया है तो मल्टीपल्स 10 आएंगे। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक्चुअली क्या है कि इसमें ये जो आउटर लूप है, इसमें सिर्फ अकॉर्डिंग टू रोमिका 1 और 2 ही चलेंगे, बिकॉज 1 इज द स्टार्टिंग वैल्यू, 3 इज द एंडिंग वैल्यू, 1 और 2 ही चलेंगे इसमें से। और ये जो दूसरी लूप है हमारे पास, इनर लूप, दिस इज द इनर लूप, तो ये चलेगी 1 से लेके ये 10 तक चलेगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हुआ है, दैट वी हैव मेड I into j. First 1 will get multiplied with all the values of j, so you will get a output here 1 2 3 up to 10, and then the value of I in the next loop, it will become 2, and you will get here 2 is multiplied with all the values of j, like 2 4 8 10, and like this output you will get here. Clear? So rightly answered by Romika. So you can basically practice this sort of questions. Clear? So a lot of help is available. Romika, ये जो PPT मैं यूज कर रहा हूँ, आपको पता है ये PPT कहाँ से उठाई हुई है? From where we have taken this PPT? Yes sir, python.mykvs. Yes, yes, yes. So already I am sharing all the resources with you. Clear? And no, a lot of resources. If you don't have a book with you, you can still do a lot of things. A lot of things are available. CBSE ने भी ये जो आपकी NCERT वाली बुक है, ये भी उसकी सॉफ्ट कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। क्लियर? ये PPTs अवेलेबल है, and a lot of material. If you will go and explore the internet, na, a lot of material for Python is available over the net. Clear? So try to utilize your this month, and you will be very well prepared for your because whenever the external exams are over for your seniors, so we will start the +2 syllabus. Clear? So because I am bit hesitant to start the +2 syllabus, because I want that so that we are all at the same level. Whatever the difficult topics we have left in +1, so you can practice, and then probably from the month of April we will start the topics from the +2 side. The very first topic is the pandas, that starts with series and data frame. Clear? कोई क्वेश्चन है आपकी, कोई डाउट है, and any point you want to raise? सर जो हमने शुरू में एक स्पेसिंग वाला क्वेश्चन किया था सर, वो क्वेश्चन कैसे मतलब कैसे पूछेंगे वो पेपर में हमें उसके बारे? कौन सा स्पेसिंग वाला कौन सा था? सर शुरू में जो हमने एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन किया था सर, वो मतलब क्वेश्चन कैसा सा पूछेंगे? क्वेश्चन पूछते कैसे हैं? वहां पे पैटर्न, एग्जाम में पैटर्न बना होगा, वो पैटर्न बनाना है। उन्होंने ये नहीं पूछना ये स्पेस कैसे बनानी है, उन्होंने एक पैटर्न गिवन देना है, यू हैव टू अप्लाई योर माइंड एंड डेवलप दैट पर्टिकुलर। ठीक है? तो और सर एक मैंने अभी लास्ट का प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था सर, मेरा कुछ और ही आ रहा है सर इधर। तो चलो कोई बात नहीं बेटा, यही है आप सिस्टम के, आप सिस्टम के ऊपर आप बैठोगे, हिट एंड ट्रायल, यू विल अप्लाई द डिफरेंट। देखो मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस ना, तो प्रोग्रामिंग में अगर आप जब नए नए इनपुट देके देखोगे, आपका माइंड आपका 10 टाइम्स फास्ट चलेगा। बेस्ट थिंग इज कि आप इसको एक्सप्लोर कर रहे हो। जब आप इसको एक्सप्लोर करोगे, मैंने आज आप लोगों को लूपिंग पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने भी 20-20, 30-30, 40-40 बार इसको यूज कर लिया। तो अगर आप इसको 4-5 बार करोगे, तभी आपको आइडिया क्लियर होगा। हो सकता है किसी स्टूडेंट को 2 बार में क्लियर हो जाए, किसी को 20 बार में भी क्लियर ना हो। तो ये तो अपनी माइंड की एप्लीकेशन है।
जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है, कोई आधा घंटा पढ़ रहा है, कोई 4 घंटे पढ़ रहा है, कोई 12 घंटे पढ़ रहा है। सो वी कांट बेसिकली लिमिट दोस थिंग्स, ठीक है। सर, एक मैंने आपको बेस्ट थिंग है कि आप इसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, दैट इज द बेस्ट थिंग। यस मैंने सर आपको 1-2 दिन पहले सर 2 प्रोग्राम भेजे थे सर, वो सही थे क्या? ओ बेटा, अभी मेरे पास ऐसे प्रोग्राम को तो ऐसे चेक करने का इतना टाइम नहीं है मेरे पास, दैट आई विल बी चेकिंग ईच एंड एवरी प्रोग्राम। नहीं सर, आपने कहा था वो जीएसटी वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो सर मैंने वो जीएसटी करके वाला देखा था सर, जीएसटी वो वाला तो हमने क्लास के अंदर कर तो लिया, उसको एग्जीक्यूट भी करके देख लिया हमने। आप उसके साथ मैच कर लो अपनी नहीं सर, आउटपुट जैसे दैट आपने यू आर प्रैक्टिस के गेटिंग। लिए कहा था हाँ जी, सर, आपने प्रैक्टिस के लिए कहा था। प्रैक्टिस के लिए नहीं कहा था, उसकी आउटपुट मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आई विल शेयर द आउटपुट विद यू। ये है जीएसटी कैलकुलेशन का प्रोग्राम। ये है जीएसटी कैलकुलेशन का प्रोग्राम, जिसके अंदर क्या था हमारे पास, फर्स्ट थी हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट, दूसरी है नेट कॉस्ट। दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है और उसको डिवाइड करना है विद द ओरिजिनल कॉस्ट। 4 लाइन का कोड है बस ये। पहले 2 चीजें हमने इनपुट करनी है, ओरिजिनल कॉस्ट एंड नेट कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट हम मान के चल रहे हैं जो कॉस्ट शॉपकीपर को पड़ रही है, और नेट कॉस्ट हम उसको मान के चल रहे हैं जिस कॉस्ट पे शॉपकीपर हमें सेल कर रहा है। तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज द जीएसटी। तो पहले हमने ये जीएसटी कैलकुलेशन एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने उन दोनों के डिफरेंस को डाल दिया, बाद में हमने उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करके उसको प्रिंट कर लिया। पहले मैं एक बार इसको रन करके दिखा देता हूं। डिडक्शन, ठीक है, ये थी ओरिजिनल कॉस्ट। जैसे लेट से दुकानदार को प्रोडक्ट 10,000 रुपए में पड़ा, ठीक है। नेट कॉस्ट मींस जिस कॉस्ट पे उसने कस्टमर को सेल कर दिया, लेट से 12,000 रुपए में उसने 12,000 में वो सेल कर दिया प्रोडक्ट। तो जीएसटी अमाउंट कितना बना, जीएसटी अमाउंट दोनों का डिफरेंस क्या है, 2,000। और इस अमाउंट को ये जो फार्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है जीएसटी परसेंटेज, तो ये क्या है, जो दोनों का डिफरेंस है उसको डिवाइड कर दिया बाय ओरिजिनल कॉस्ट। आप नोट करना चाहते हो, यू कैन इसको नोट कर लो। आप इसकी स्नैपशॉट रखना चाहते हो इस कोड की, यू कैन टेक दी स्नैपशॉट आल्सो। हाँ जी सर, स्क्रीनशॉट ले लिया सर मैंने। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी आपको फिजिबल लगता है। यू वांट टू नोट डाउन, और नोट डाउन कर लो, मेरे को कोई जल्दी नहीं है इतनी, आप इसको नोट कर सकते हो। यू कैन नोट डाउन द कोड आल्सो। नहीं सर, मैंने ऐसा ही कोड खुद भी बनाया था सर, मैं वो आपको व्हाट्सएप कर दूंगा एक बार सर आज। तो बेटा उसको रन करके मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है। दैट इज, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आपके सीनियर्स की है, 2 दिन बाद उनका फाइनल प्रैक्टिकल है, सो आई हैव टू गिव टाइम टू देम आल्सो। जब आपका फाइनल एग्जाम आएगा तो नो, आई विल बी गिविंग टाइम टू यू। यस रोमिता, क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम यू अटेंड द क्लास, कीप योर कैमरा एक्टिव। आप देखो क्लास में आप कितना अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो अगर आपका कैमरा बंद रहता तो आपने ऐसे क्लास में से बाहर चले जाना था, एंड वी मे नॉट हैव आस्क्ड एनी क्वेश्चन टू यू। सो कोऑपरेट विद योर टीचर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। सो कीप प्रैक्टिसिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। ठीक है सर, थैंक्स बेटा।